Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 3rd, which is important topic centrifugal force and its application. So ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ application ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ centrifugal force ਦੀ definition ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ application ਕਰਾਂਗੇ which is motion of a vehicle on the level circular road. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ centrifugal force ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣਿਆ centrifugal force। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ definition ਪੜੋ। द आउटवर्ड फोर्स ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨ ਇਟ ਚੇਂਜਸ ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ of motion is called centrifugal force. ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ठीक है, सो दो टर्म्स आ कन्फ्यूज नहीं होना। सैंट्रीपिटल मतलब अंदर वाली फोर्स, सैंट्रीफ्यूगल मतलब जिहड़ी बाहर वाले पासे नूं फोर्स फील होंदी होवे। ठीक है, सो देख लो ध्यान नाल, एक परसन आ एक बॉल नूं कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव करवा ਰਿਹਾ। सो अंदर वाले पासे ਉਹ खुद फोर्स लगा ਰਿਹਾ विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फोर्स एक्सपीरियंस होएगी विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੀ ਵੀ फोर्स बोल ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੀ फोर्स ਸਾਨੂੰ फील ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स की सी ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इट इज़ ऑलवेज आउटवर्ड फोर्स आ। सो ऑलवेज आउटवर्ड द डायरैक्शन जिधर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ठीक है, सो ਅਸੀਂ फर्स्ट एप्लीकेशन करन जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन की आ मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। हुण की आ कोई कार, कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल, कोई भी व्हीकल लै लो जो एक लेवल सर्कुलर रोड के उपर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जी अपन सिंपल रोड होंगी बिल्कुल प्लेन रोड आ वो लैवल आ। ठीक है, इक्को ही लैवल ते आ। सर्कुलर रोड मतलब जिथों तुसी मोड़ कटना आ वो वाली चीज़। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो, वैन अ व्हीकल गोज राउंड अ लेवल सर्कुलर रोड, जिद्दां ही व्हीकल एक लेवल सर्कुलर रोड ते जांदा इट शुड बी एक्ट अपॉन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कहंदे उत्थे नाल दी नाल ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगदी। मतलब मान लो आ पूरा सर्कल है, इत्थे जाके एक रोड बनी हुई आ, मान लो इधरले पासे सारे खेत आ, वो तो कोई ना कोई तो सेंटर होएगा ही। इहदा मतलब आ तुहाडी कार सी ਤਾਂ ਕਾਰ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ F1 ਐਂਡ F2 ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਦ ਕਰਵਡ ਪਾਥ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਵਡ ਪਾਥ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦ ਵੀਲਸ ਆਫ ਦ ਕਾਰ ਹੈਵ ਅ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਲੀਵ ਦ curved path and regain the straight line। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ curved path ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟਾਇਰ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ? frictional force between the tire and the road opposes the tendency of the wheel। this frictional force is frictional force ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ therefore act towards the center of the circular path। so ਇਹ frictional force ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ centripetal force ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ towards the center ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਦੇ? circular path ਦੇ and provides the necessary centripetal force ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ centripetal force provide ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਥਿਓਰੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ठीक है, सो इस डायग्राम तो असीं मैथमैटिकल पोर्शन लिखन लगे हाँ। सो स्टूडेंट्स की करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जिद्दां मेरे पेजिस ते नंबर ऑफ टाइम्स डायग्राम बनी हुंदी है, तुसीं भी टैस्ट दे विच 19 वारी नंबर ऑफ टाइम्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बच्चे मैं तां ड्रॉ करदी हाँ क्योंकि तुहानूं हर थियोरी और मैथमैटिकल दे नाल तुहानूं डायग्राम क्लीयर हो जाए अच्छी तरह ना। ठीक है, सो हर पेज ते डायग्राम नहीं बनानी, एक आर्टिकल दे विच इक्को वारी डायग्राम बनती है। ठीक है, अगे देखो साडी फिगर दे विच की आ वेट ऑफ द व्हीकल mg
एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हुण ध्यान नाल देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड तुहाडी एक फोर्स लग रही है विच इज़ mg। ठीक है, अगे देखो R1 एंड R2 द फोर्सिस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन टू द रोड ऑफ द व्हीकल। सो इत्थे दो रिएक्शनस लग रही। सो फर्स्ट टायर तो जी रिएक्शन लग रही है विच इज़ R1 एंड सैकेंड टायर तो जो रिएक्शन लग रही है विच इज़ R2। सो दो रिएक्शनस लग रही R1 एंड R2। अगे देखो एज द रोड इज़ लैवल, क्योंकि सानू पता कि जी रोड आ बिल्कुल लैवल आ, कोई खड्डा नहीं आ, कोई उबड़ खाबड़ नहीं आ, कुछ नहीं आ। इट मीनस R1 R2 एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब R1 R2 दोनों ही वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करनगे। सो असी लिख सकते हैं, असी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ की कहता है, अगर एक फोर्स एक डायरैक्शन दे विच तो दूसरी फोर्स दूसरे डायरैक्शन दे विच होएगी। इस केस दे विच की है डाउनवर्ड डायरैक्शन की है mg और अपवर्ड डायरैक्शन दे विच दो फोर्सिस लग रही रिएक्शनस आ R1 एंड R2। सो दो आ, इस करके दोनों नू ऐड कर दिता R1 प्लस R2। इज़ दैट क्लीयर? इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि असी R1 प्लस R2 क्यों लिखिया, क्योंकि दोनों टायर्स से जी फोर्स लग रही है एक ही आ विच इज़ mg, असी लिख दिता mg। सो रिएक्शनस इत्थे दो लग रही R1 एंड R2, दैट इज़ वाई असी लिख दिता R1 प्लस R2। इज़ दैट क्लीयर? सो नैक्सट पढ़ो हुण की उन्होंने क्या आ, लेट म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। असी लास्ट आर्टिकल दे विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं जिस विच असी म्यू ड्राइव कीता सी। ठीक है, बिटवीन द टायर्स एंड द रोड F1 F2 की है थोड़ी फोर्सिस ऑफ फ्रिक्शन आ बिटवीन द टायर्स एंड द रोड डायरैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ, जिहड़ी कि सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ वाल डायरैक्ट की हुई है। इसदा मतलब फोर्स किहदे इक्वल होएगी। ठीक है बच्चे, तुसीं लास्ट वीडियो दे विच जे तुहानूं याद आ तुहाडा म्यू दा आंसर कितना आया सी F डिवाइडेड बाय R। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे विच असीं आ टर्म पढ़ चुके हैं। सो R नूं उधर लै जाओ, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू R। इज़ दैट क्लीयर? इसदा मतलब F1 फोर्स किहदी वजह नाल आया, R1 की वजह नाल। सो F1 इज इक्वल्स टू म्यू R1। सो F2 फोर्स किहदी वजह नाल आया, R2 की वजह नाल। सो असीं की लिखांगे F2 इज इक्वल्स टू म्यू R2। इज़ दैट क्लीयर? सो ए आ वालियां दो इक्वेशनस जिहड़ी सैकेंड नंबर दी इक्वेशन आ वो साडियां अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले दे अकॉर्डिंगली आईयां। दैन इफ v इज़ द वेलोसिटी, मान लिया कि v तुहाडी वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल वाइल नैगोशिएटिंग द कर्व। जो तुसी कर्व नू पार कर रहे होंगे, जो तुसी मोड़ कट रहे होंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सानू कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी mv² डिवाइडेड बाय r। असी लास्ट वीडियो दे विच कर चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा आ mv² डिवाइडेड बाय r। इसदा मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स साडी इन्नी लग रही होएगी। सो असी लिख दिता। सो ध्यान नाल देखो, इत्थे तीन चीज़ां लिखियां। नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन होएगा। सो mg किहदे इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 दे। डन। सैकेंड वन इज़ कि साडियां किहड़ियां फोर्सिस लग रही। सो किहड़ी फोर्सिस लग रही, F1 एंड F2। सो असीं वो दोनों इक्वेशनस लिखनियां सी। सो सैकेंड इक्वेशन लिख दी F1 और F2 दी, बन गई सैकेंड इक्वेशन। सो फोर्स एक्चुअल दे विच लग किहड़ी रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो असीं लिख दिता F इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय R। इज़ दैट क्लीयर? सो इत्थे तक साडी मोटियां जो असीं मेन टर्म्स लिखनियां सी वो लिख दित्तियां। नैक्सट असीं करन लगे एज दिस फोर्स इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह नाल जिहड़ी आ तुहाडी ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही, किहड़ी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो असीं की लिखांगे mv² डिवाइडेड बाय R। दिस इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ लेस दैन, घट होएगी या फिर इक्वल होएगी। ठीक है, असी लेस दैन और इक्वल टू द साइन पाता, लेस दैन और इक्वल टू टोटल फोर्स। टोटल फोर्स साडियां किहड़ियां आ, F1 प्लस F2। ध्यान नाल डायग्राम चेक करो, इत्थे दो फोर्सिस ही आ, F1 और F2। ठीक है, असी कह रहे कि अंदर वाले पासे नूं किहड़ी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ mv² डिवाइडेड बाय R। इसदा मतलब दोनों फोर्सिस किहदे इक्वल होणगियां, mv² डिवाइडेड बाय R दे। सो असी लिख दिता या तो इक्वल आ या फिर उस तो वड्डी आ। ठीक है, सो हुण ध्यान दो, वट इज़ द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इत्थे लिखो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू R1, F2 की वैल्यू म्यू R2। तुसीं इत्थे ब्रैकेट च लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड।
बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो इस तरीके ना थोड़ा आ गया। सो म्यू नू बाहर कॉमन निकाल लो, वी गेट R1 प्लस R2 डन। सो इस तरीके ना आ गया थोड़ा एक टर्म। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान ना देखो थोड़ी की आ, इक्वेशन नंबर 1 की आ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg। सो असी की आ R1 प्लस R2 की जगह ते की लिख सकते हैं mg। सो असी लिखन लगे हाँ म्यू mg। सो यदा मतलब mv स्केयर डिवाइडेड बाय r का आंसर कितना आ गया म्यू mg। ध्यान नाल देखो ये m दे नाल m कैंसल आउट हो गया, सानू कल्ली v चाहिए आ। सो v स्केयर इज इक्वल्स इज लेस दैन और इक्वल टू r नू दूसरी तरफ ले जाओ, वी गेट म्यू r g। इज दैट क्लीयर? सो इत्थे तक तुहानू पता लग गया भी असीं की कीता। दैन की कीता, सानू कल्ली वेलोसिटी चाहिए जद कि साडे को v स्केयर आ रहा। सो v स्केयर दूसरी तरफ जाके की बन जाएगा अंडर रूट, या तुसीं सिंपल भाषा च बोल सकते हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। जो दोनों तरफ अंडर रूट लाओगे स्केयर ना अंडर रूट कटे जाना, इधर अंडर रूट लाओगे तो अंडर रूट बच जाएगा। ठीक है, या स्केयर नू दूसरी तरफ ले जाओ तो अंडर रूट बन जाएगा। सो फाइनली तुहाडे कोल आ एक आंसर आ गया। सो दिस इज हैंस द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ व्हीकल कैन गो अराउंड द लेवल सर्कुलर रोड विदाउट स्किडिंग। ठीक है, अगर वो बिना किसी स्किप किए हुए होवे तो तुसीं इहनूं यू ना भी डिनोट कर सकते हैं। सो यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है बच्चे, इनू यू नहीं लिखना, दिस इज म्यू। सो आ वाली डंडी ध्यान ना बना लैनी। ठीक है, सो ये की सी तुहाडा फाइनल, इत्थे तक तुहाडा आंसर सी। अगर इस आर्टिकल दे विच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होवे तो तुसीं पुछ सकते हैं। सो अज इस वीडियो दे विच असीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे पढ़िया और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बारे पढ़िया। ठीक है जी, थैंक यू।